آگے رکھنا ہے اس کو. آپ اپنی ریکارڈنگ کرتے رہو.
میں آپ سب کو سلام. In the name of Jesus Christ, good evening everyone. ہم اپنے خداوند کے بڑے شکر گزار ہیں اس پیارے سے دن کے لیے, اس پیار سے وقت کے لیے, اس پیار سے ٹائم کے لیے جو خداوند نے ہمیں دیا. اور ہم سب ایک جو فیملی ہے, ایک چھوٹا سا گروپ ہے جس کو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں, ہر وقت دعا میں یاد رکھتے ہیں, اپنے خداوند کا بڑا شکر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں اس پیارے سے ٹائم کے لیے, اس وقت کے لیے جو خداوند نے ہمیں مہیا کیا. اپنے خداوند کا بڑے تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور خاص طور اس پیار سے گروپ کے لیے, انٹرڈومینیشن کیریزمیٹک پریئر فیلوشپ کے لیے, ان کی ساری ٹیم کے لیے, آپ سب کے لیے, اور ہمارے پیار سے چیئرمین برادر جاوید اقبال صاحب کے لیے خدا کا شکر, اس کی تعریف, اس کی تمجید ہو کہ خدا نے اپنا رحم, اپنا کرم, اپنا فضل ہم سب پہ رکھا. اور خاص طور پہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے جب بھی ملتے ہیں بڑے پیار, محبت اور دلیری کے ساتھ ملتے ہیں. اور اب جب کہ خداوند نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہمارے اس پیار سے گروپ کے چیئرمین برادر جاوید اقبال صاحب کے لیے کہ خداوند نے پورے گزرے سال میں ہمیشہ کی طرح اپنا رحم, اپنا کرم, اپنا فضل رکھا اس گروپ پہ, اس پیار سے چیئرمین کے ساتھ, اور انہوں نے پوری خدمت پورے دل اور جان کے ساتھ ہمارے ساتھ کی. ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں اور کیونکہ یہ وقت, یہ ٹائم اسپیشلی جو کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں برادر جاوید اقبال کے یہ برتھ ڈے جو ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم اپنے خدا کا ایک دفعہ پھر شروع کرتے ہیں کہ اس پورے گزرے سال میں انہوں نے حفاظت کری, صحت تندرستی دی, اور بائی دی گریس آف گاڈ ہاللیلویا ابھی بھی ہم ان کو ویسے ہی دیکھتے ہیں. ہم اپنے خدا کو بڑا شکر کرتے ہیں. اور ہم یہ کیک کے ساتھ ہم بھائی جاوید کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کریں گے. اور ہم شکر کرتے ہیں خداوند کا, یہ برادر جاوید کی 66 برتھ ڈے ہیں اور زوردار تعلیم کے ساتھ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور خداوند سے یہی دعا ہے خداوند اسی طرح رکھے, یہ 66 چلتے چلتے 96 تک پہنچے اور ہم خداوند سب کے ساتھ ہوں. آمین. پھر 96 میں ہم سینچری آگے لے جائیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی کیٹنگ سیرمنی کریں, میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر جانسی صاحب سے کہ پلیز وہ آئیں. چلو تھوڑا اٹھنا, سر ریکویسٹ آپ پلیز چلو بیٹھو تھوڑا. ریکویسٹ ہے مسٹر بشیر سے پلیز وہ بھی آئیں. برادر البرٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز وہ بھی آئیں. بھائی البرٹ پلیز. سسٹر گلفام سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی آئیں پلیز. مسز ٹورس. سلینا بھٹی ابھی پہنچے نہیں. فلوریا سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی آ جائیں. فلوریا. رچرڈ پلیز. رچرڈ
रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो हमारे मेन आज के मिस्टर मैनुअल से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मिस्टर मैनुअल प्लीज़ ये जलाने वाला है नहीं है ना? नहीं ये रहने इससे पहले कि हम केक काटें मेरे रिस्पेक्टेड सिस्टर से प्लीज़ वो दुआ में रहनुमाई करें। हम सब दुआ करें और खुदा से अपने उस्ताद ब्रदर जावेद के लिए, अजीज मोहतरम और भाई जो हैं उनके लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे बरकत की। हम सब अपना गाना आगे की तरफ बढ़ाएंगे और खुदावन से बरकत चाहेंगे। हम सब हाथ बढ़ाएंगे गाना राइट हैंड। कुदूस 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 खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन, नौ आसमानों के बादशाह। सारे वक्त के लिए पाई बजाओ। हम दिल के गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन आज के इस खास मौका के लिए कि तूने अपने बेटे हमारे प्यारे भाई जावेद को एक ज़िंदगी बख्शी है खुदावन। तमाम गुज़रे सालों में तूने इनका साथ दिया, इनकी हिफाजत की, इनको सेहत और तंदुरुस्ती दी खुदावन। चल सिंपल का आवाज़ मैं दुआ मांगती खुदावन अपने सब बहन भाई के साथ मेल कर आवाज़ दे। उस बरकत को खुदावन जारी रख पर खुदावन। सही है। ऐ खुदावन को ज़ोरावर बना और अपनी खिदमत के लिए और कसरत से इस्तेमाल कर, सेहत और तंदुरुस्ती अता कर खुदावन, मुकाबों का जोर अता कर, इनकी जवानी को नया कर दे खुदावन। इधर करो। आगे तमाम जिंदगी के खुदावन ऐसे ही के साथ रहे जैसे अब तक उनके साथ रहा खुदावन। इधर सच्चा वफादार खादिम है, ऐ खुदा बड़ी वफादारी से खिदमत कर रहा है, रोहों को बचाता है खुदावन। मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ खुदावन उनको इसी तरीके से इस्तेमाल कर, अपने खुदावन उस रोया को लेकर जो तूने इनको दी खुदावन लेकर इसी तरह से उस पर फोकस करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते जहाँ बरकत बांटे लोगों के खुदावन। ऐ खुदावन ने बचाया हुआ इंसान ही दूसरों को बचा सकता है खुदावन। तूने इनको वो रूहानी ताकत बख्शी जो खुदावन तो अपने खासों को बख्शता है खुदावन। और बाकी जितनी नेमतें हैं खुदावन, तमाम बरकतें खुदावन उनको भी इनके लिए क्लेम करती हूँ खुदावन, अपने बहन भाई के साथ मिलकर मुत्तफिक होती हूँ खुदावन। ऐ खुदावन इनको और बढ़ा अपने पान में खुदावन, इसी तरह से आगे लेकर चलता रहे खुदावन, इसी तरह से अपना मसर ठहरा कर रख अपने इस बंदा पे खुदावन, ताकि इसकी ज़िंदगी भी बरकत का बायस हो और ये दूसरों के लिए भी इसी तरह से बरकत का बायस बनता रहे खुदावन। तेरे काम को इसी तरह से आगे बढ़ाता रहे। इनके घराने के लिए भी खास तौर से दुआ करती हूँ खुदावन कि सब आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें खुदावन, ताकि इसी तरह से ये इस माहौल में खुदावन आगे बढ़ते जाएं और खुदावन तेरे कलाम को इसी तरह से बांटते जाएं, लोगों में शिफा बांटे जो तेरी तरफ से आती है खुदावन, उस कलाम को बांटे जो खुदावन तेरी तरफ से आता है खुदावन, उस रूहानी रोटी को सबके साथ तोड़े खुदावन जो तू खिलाता है खुदावन। मैं सबके साथ मिलकर खुदावन शुक्र अदा करती हूँ अब तक की नेमतों बरकतों के लिए, और जानती हूँ और बड़ा ईमान रखती हूँ खुदावन आज जो कुछ भी मांगा है खुदावन तो बड़े ईमान से पाया है तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी बनती हो। और अपनी स्पेशल प्रेयर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो भी स्टेज पे हमारे पीछे Okay, we should thank now. The time is come to cut the cake. I will request Brother Javed Bali to please hold the knife and 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear brother. Happy birthday. ना सैम से हुआ ना Oh
ابھی ہم کلام کی روحانی روٹی سے سیر ہوں گے اور خداوند ہمارے رہبر کو جو ہے بہت برکت دے، اور اب ہم کلام کی روحانی روٹی سے سیر ہوں گے۔ بیٹی نسیم اختر کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آپ کا حوالہ تلاوت کریں۔ آواز تیز خداوند کے زندہ پاک نام میں سے پڑھیں گے متی رسول کی انجیل اس کا 18 باب اس کی 21 سے 35 آیت تک۔ اس پر پترس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار۔ پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا، چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا۔ اس نوکر کے مالک نے قرض کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ پر اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کروں گا۔ ریکارڈنگ کرتے رہو۔ اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری محنت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالہ کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آپ کی عبادت میں۔ خداوند نے ہمیں نور و لطیف سے جمع کیا کہ ہم آج کے زندہ پاک کلام کو سنیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے پاور آف فارگیونیس، معافی میں قوت ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔
आए खुदावन खुदा खुदा के पाक बंदे तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए, एकदम पहले हिस्से के लिए। अब जब हम आए खुदावन खुदा स्पिरिचुअल एरिया में दाखिल हुआ चाहते हैं तो तेरा जबरदस्त मज़ा एक जिंदगी को छुए और हमें कलाम के लिए तैयार करे। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। ये हवाला अपने आंखें खोलें, सर उठाएं और कई बार आप लोगों ने इस कलाम को सुना होगा। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, आए खुदावन अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता 7 बार बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। तब आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से अजाब लेना चाहा। तो आगे अभी आप लोगों ने कलाम सुना है। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ, जितने लोग आए हैं, जो नए आए हैं उनको भी वेलकम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोग खुदा के आते रहें और इसी तरह से हम मिलजुल कर इंटरडिनोमिनेशनल कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप ये प्लेटफॉर्म से रूहानी जिस्मानी बरकत को हासिल कर सकें। आज का हमारा मजमून क्या है? पावर ऑफ फॉरगिवनेस, यानी माफ करना क्या है? एक कुव्वत का नाम है। बुज़दिल आदमी, कमजोर आदमी माफ नहीं कर सकता है। माफी के लिए बड़ा हौसला चाहिए। सही कहा या गलत कहा? माफ करना और माफी देना जो है ये एक बड़े दिल की बात है। इसलिए मैंने कहा कि पावर ऑफ फॉरगिवनेस। बहुत सारे लोग माफ करने में बड़े कंजूस होते हैं, माफ नहीं करते, सारी उम्र जो है अपने दिल में गिरा बांध कर रखते हैं। और यहाँ पर भी पतरस ने खुदावंद से आकर पूछा, अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मैं कितनी बार माफ करूं? तो उसने आसान सी बात सोची कि 7 दफा काफी है खुदावंद मेरे लिहाज से। तो खुदावंद ने कहा कि 7 नहीं 7 के 70 बार तक। तो ग्रीक में तो माफी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो एफेसिस इस्तेमाल हुआ है। क्या लफ्ज? एफेसिस, जिसका मतलब है बंधनों से रिहाई देना, या वो लोग जो गुलाम हैं, कैद हैं, उनको आजादी बख्शना, गुनाहों से आजाद करना। और इसी से जो इंग्लिश लफ्ज निकाला गया है वो है रिलीज। रिलीज का मतलब क्या है? आजाद करना। अगर कोई जो इससे हमारी नाराजगी है, हमने जब तक उसको माफ नहीं किया, ऐसे ही है जैसे कि आपने तोते को पिंजरे में बंद किया हुआ है। तो हमने उनको क्या करके माफ करके खुदा की हजूरी में आजाद करना है, टू रिलीज देम। और अब हम किस तरफ आते हैं? मेरी कोशिशों से ज्यादा मुश्किल बातों में आप लोगों को ना उलझाऊं। तो अब दामन का बंदा पतरस को आसानी ढूंढता है। आज भी हमारे मसीही लोग मजहब में आसानियां ढूंढते हैं, आसान काम कर रहे हैं। मुश्किल काम करने के हम खुदा के लिए तैयार नहीं होते। तो खुदावन ने क्या जवाब दिया? कितनी बार तक माफ करना चाहिए? 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार, यानी 70 into 7, 70
7, तो कितना बन गया 490, 490 बार। यानी खुदावंद कह रहा है कि अनलिमिटेड हमने मुआफ करना है। और खुदावंद खुदा यही चाहता है कि कलाम में लिखा है कि जब हमारी दुआएं रुक जाती हैं, हमारी बरकत रुक जाती है, हम छुपा नहीं पाते जब तक कि हम किसी को मुआफ नहीं करते। हमारे काम जो रुके हुए हैं वहीं रुके रहते हैं जब तक हम किसी को मुआफ नहीं करते। हमारी प्रॉस्पेरिटी में फॉरगिवनेस क्या है, एक रुकावट बनी होती है। अगर आज आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं माली तौर पर और रूहानी तौर पर, तो अगर हमारी किसी से नाराजगी है तो अभी दिल में कह दें कि मैंने खुदावंद को माफ किया है, और फिर जाके उस बहन भाई को गले भी लगाएं। प्रैक्टिकल जो रात का मेरा मैसेज था जो मैंने फेसबुक पे दिया, तो टाइप्स ऑफ इवेंजलिज्म मैंने शेयर किया था। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जिनके पास ये सहूलत है फेसबुक की, तो वो जरूर, मैं 9:30 बजे फेसबुक पे आता हूँ, सुबह का मैसेज व्हाट्सएप में देता हूँ। तो अगर आप मैसेज सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फोन हम तक पहुँचा सकते हैं। तकरीबन 250-300 के करीब लोग होते हैं जिनको सुबह मैं मैसेज भेजता हूँ और उनकी बड़ी अच्छी फीडबैक आती है। हम खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। तो आज हम मुआफी के हवाले से कलाम को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर खुदावंद ने एक तमसील दी, एक बादशाह के हवाले से। जब अज़ाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 कोड़े आते थे। अब हम पाकिस्तानी इस वक्त 10,000 रुपये कर सकते हैं, 10,000 कोड़े के हैं उस जमाने के मुताबिक जो हैं पता नहीं लाखों में आज का पैसा बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ी रकम थी, हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 कोड़े आते थे, मगर क्योंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म किया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। ये बिल्कुल ऐन शरीयत के मुताबिक था। शरीयत का ये लॉ था कि अगर कोई कर्ज अदा नहीं करता था तो उसके बच्चों को क्या कर लिया जाता था, उसके खानदान को जो गुलाम बना लिया जाता था। अगर दूसरा सलातीन या सेकंड किंग, दूसरा सलातीन 4 बाप, एक अंबिया जातों में से एक बेवा का जिक्र है, और वो लीशा के पास गई कि कर्ज था मेरे घर में आकर बार बार तेरा दरवाजा खटखटाता, तेरा बंदा अंबिया ज़ादा प्रॉफिट जो था वो खुदा से डरता था, और अब ये उसका कर्ज जो था, एक कभी मौका मिला तो सुनने के ये कर्जा चढ़ा कैसे था, ये अंबिया काहिन प्रॉफिट की बात है। तो फिर मैं बाद में किसी वक्त इस कलाम को खोलूंगा। तो उसने कहा कि कर्ज का आया है कि मेरा शोहर भी मर गया है, अब 2 बच्चे रह गए और उनको भी कलाम करने के लिए वो लेने के लिए आया। तो मैंने हवाला दिया, साबित किया कि इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ, ये कोई जबरदस्ती नहीं थी, शरीयत के मुताबिक ये था। इसलिए हम कहते हैं कि खुदा ने हमें शरीयत से क्या किया, आजाद किया, रस्मी शरीयत से, जिनका ताल्लुक जो है सैक्रिफाइस के साथ था, जिसका ताल्लुक क्या कुर्बानियों के साथ था। और अक्सर आप इन दिनों मेरे मैसेज सुन रहे हैं कि मैं मसीहानिक यूथ के हवाले से तालीम देता हूँ कि जिन्होंने बड़ी जो है ये बहुत बड़ी बिदअत है जो कि पुराने यानी
مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ عیدوں کو بھی مانتے ہیں. اور کلام کیا کہتا ہے کہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. ایک بیان میں دو تلواریں نہیں سنبھال سکتی. تو مسیحانک جیوس کی اگر کوئی آپ کو آ کے تعلیم دے تو آپ کلام کے مطابق بس گلیشین چیپٹر 1 ورس 8 ہے تو آپ اس ورس کو لکھ لیں اور سمجھ لیں اور پڑھ لیں. اور لکھا ہے کہ خداوند کا بندہ کہتا پالوس رسول کہ جو تعلیم میں نے تم کو دی ہے اگر میں بھی اس تعلیم کو آپ کے دوسری تعلیم دوں تو میری بھی نہ سنو. اگر کوئی فرشتہ آسمان کا فرشتہ بھی آ کر تمہیں اور کوئی تعلیم دے تو ان کی بھی نہ سنا. اس وقت ہی سے 50 لوگ پیدا ہو گئے تھے. مسیح یسوع کے زمانے میں گناسیت کا ایک فرقہ تھا جو کہ یہ کہتے تھے کہ مسیح جو ہے وہ مادہ میں ظاہر نہیں ہو سکتا. مادہ ایک دھوکہ ہے. اور وہ اسکندریہ کے ناصرت فرقہ سے یہ لوگ تھے زیادہ متاثر تھے. ناصرت لوگ اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کہ مادہ دھوکہ ہے اس لیے مسیح یہ جسم میں ظاہر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یوحنا نے پہلا خط جو ہے اس بدعت کے خلاف پہلا یوحنا پہلا باب اس کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور ہماری آنکھوں نے دیکھا کانوں نے سنا اور ہاتھوں سے چھوا اور یہ زندگی ظاہر ہوئی. یہ اس فرقے کے خلاف ناستک فرقے کے خلاف خداوند کا بندہ یوحنا اٹھ کھڑا ہوا. تو آج دنیا میں 3000 سے زیادہ بگڑتی تعلیمیں ہیں. اس لیے ہمیں ہوشیار اور بیدار رہنا چاہیے اور کلام کو سننا چاہیے اور کلام پر عمل کرنا چاہیے. مین جو ڈاکٹرین ہے وہ بائبل ہے. ہم بائبل کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو بائبل کہتی ہے ہم بائبل کو مانتے ہیں. جہاں بائبل خاموش ہے وہاں ہم خاموش ہیں. اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ جو تعلیم غلطیوں کی کلیسیا جو ہے وہ پھر گئی خدا کے کلام سے ہٹ گئی تو کہتا ہے کہ اتنی جلدی جو تعلیم میں نے تم کو دی تھی تو تم اس سے پھر گئے. کیا تم ایمان کے ساتھ کلام میں آگے بڑھنا چاہتے ہو یا شریعت کے مطابق اتنی جلدی تم بدل گئے. گلیشین چیپٹر 3 اے نادان فلسطینیوں کس نے تم پر افسوس کر دیا جادو کر دیا. کس نے تم پر جادو کر دیا. تمہاری کو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا. میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے ایمان سے روح کو پایا. بچوں سے سنیں. کیا تم نے شریعت کے ایمان سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے آپ جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں مگر شاید بے فائدہ نہیں بس جو تمہیں روح بخشتا ہے اور تمہیں موت سے ظاہر کرتا ہے کیا وہ شریعت کے ایمان سے کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ ان دونوں کو جو ایمان سے مراد مسیح یسوع ہے کیونکہ گلیشین چیپٹر 3 ورس 23 میں لکھا جب ایمان آ گیا تو ہم شریعت سے کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے. 23 ورس ہے گلیشین 3 ورس 23 چیپٹر 3 گلیشین چیپٹر 3 ورس 23. ایمان کے آنے سے پیشتر ایمان کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے. ہبریو چیپٹر 12 ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو رکھتے ہوئے میں نے ثابت کیا کہ ایمان یسوع مسیح ہے. ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ادائیگی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا
क्या लिखा है? ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को तकते रहो। तो जब ईमान आ गया तो हम शरीयत के मुताबिक ना रहे। तो अब ये मेरा मजमून नहीं है, सिर्फ मैंने इसलिए ये बात कही कि हमें जो है कलाम को जानना चाहिए, कलाम को सीखना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को ये इल्म नहीं कि माफी की बरकत क्या है। और बात औकात तो हम इतना आगे निकल जाते हैं कि तू मेरे मरने पे नहीं आना, मैं तेरे मरने पे नहीं आऊंगी। यानी हमने इस तरह से गिरे बांध रखी है। तो कलाम कहता कहीं तो हमें फुल स्टॉप डालनी चाहिए। तो आज मुआफी का मैसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि हमें कितनी बार तक माफ करना है? 490 टाइम मीन अनलिमिटेड। अनलिमिटेड यहाँ पर ये मैसेज है। और आगे क्या लिखा है कि मैं शरीयत की बात कर रहा था कि जब वो आए उसके पास कर्ज अदा करने के लिए ना था। 25 आयत को दोबारा पढ़ने लगा हूँ। बात को उसके 10,000 कोड़े आते थे, मगर उनको उसके पास अदा करने को कुछ ना था। इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये उसकी बीवी बच्चे और जो कुछ उसका है बेचा जाए, कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने आकर उसे सजदा किया, कहा कि इस्लाम के मोल दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। तो मैंने साबित किया कि इस मालिक ने, इस बादशाह ने कोई जबर नहीं किया। जब उनके मालिक को और बच्चों को वो गुलाम बनाने के लिए शरीयत के मुताबिक का हवाला मैंने क्या दिया आप लोगों को कभी तो बताएगा नहीं। पुराने आदमी का हवाला जो मैंने दिया था 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 1 to 10 के अंबिया जातों में से एक बेवा लीजा के पास जाती है। मैंने हवाला दिया था कि वो आकर जो है कहने लगी कि तेरा खादम खुदा से डरता था, वो गुलाम में सो गया है और कर्ज का आगे में कम करते हैं, हमारे पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं है। वो आए हैं कि तेरा खादम भी गुलाम में सो गया है और अब वो दोनों बच्चों को भी ले जाएंगे। इस तरह से मैं जीते जी खत्म हो जाऊंगी। तो मैंने ये साबित किया कि कार्डिन को जो है ये जो कुछ हुआ बादशाह ने उसके बच्चों को गुलाम बनने के लिए कहा, पकड़ने के लिए भेजा और उसकी बीवी बच्चे और जो कुछ है बेचा जाए। और अभी मैंने ग्रीक में वर्ड बताया था जिसका मतलब है टू रिलीज। एफेसस का मतलब है टू रिलीज। तो यहाँ पर हमने देखा कि गुलाम ने उस गुलाम को क्या कर दिया जिसके पास अदा करने को नहीं था, मालिक ने रिलीज कर दिया, उसे छोड़ दिया, माफ कर दिया। बस नौकर ने आकर उसे सजदा किया और कहा गुलाम मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा।
लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत भाई पर रहम करता। और उसके मालिक ने खफा और जलातों के हवाले किया जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा। इन मेरे और आपके साथ जब हम आसमान पर जाएंगे अगर एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे करेगा तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से जब माफ ना करे तो आसमानी बाप भी इसी तरह करेगा। दुआए रब्बानी में हम क्या करते हैं दाए बाप जिस तरह हम दूसरों के कसूर माफ करते तू भी हमारे कसूर माफ कर दे। अगर यहाँ को हम माफ करते या फिर हम दुआए रब्बानी ना पढ़ा करें इस मतलब अगर हम पढ़ते हैं तो दुआए रब्बानी भी गलत है। तो लिहाजा इस कलाम पर गौर करें। और मैंने ये बताया आप लोगों को इंग्लिश में और ग्रीक में इसका मतलब है कि बंदरों से आज़ाद करना है इसका मतलब। और रिलीज मैंने इंग्लिश में बताया आज़ाद कर देना। और इसी तरह यहाँ ये वाक़या कहा जाता है पहाड़ी बात में खुदाम रसूल क्या कहता है Gospel of Matthew chapter 5 verse 23 बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गजरानदा हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से क्या कर ले मलाप कर तब आकर अपनी नजर क्या करना गजराना। ये किसके अल्फाज हैं खुदावन यीशु मसीह के। पहाड़ी बास में खुदावन ने ये कहा और कलाम ये कहता है कि अगलों से ये कहा गया था झूठी कसम ना खाना। ये भी यानी मसीह की तालीम और ला की तालीम शरीयत के तालीम में ज़मीन आसमान का फर्क है। दोनों को मैं पैरेलल लेके चल रहा हूँ। फिर तुम सुन चुके हो 5 बाब 33 है। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था। अगलों से बात क्या है सब खामोश हैं। मैं से एक जुमला बोलता हूँ कि मैं पूरा कब्रिस्तान में खड़े के कलाम नहीं सुना रहा। अगलों से कहा गया अगलों से मुराद क्या है कोई भी बोला हाँ जो हमारे बाप दादा अगलों से मुराद क्या शरीयत है। मूसा के ज़माने कैसे साबित होता है आगे कलाम साबित करता अगलों से क्या मुराद है। अगलों फिर तुम सुन चुके अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना खाना ना को आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके कौम की चौकी है ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि कोई बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता बल्कि तेरा कलाम क्या हो हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। व्हाट डज इट मीन अगर आप किसी बात को समझते हैं कि ये गलत है फिर भी उस बात गलत में आप शामिल होते हैं तो आप उतने ही गुनहगार हैं जितना कि वो शख्स है। अगर आप चोर को अपने घर में पनाह देते हैं तो जो चोर की सजा है वो आपकी भी सजा है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख। अगर किसी ने आपकी आंख को जाया कर दिया है तो शरीयत क्या कहती है तू भी उसकी आंख निकाल। Am I right? या सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं ये मेरा ही कलाम की बाइबल कह रही है। तुम सुन चुके हो कहा गया था कि आंख के बदले आंख। कहाँ कहा गया था मैंने बता दिया कलाम इस्तिस्ना में और इबार की किताब में वाज़ेह तौर पर कोई सीना पर जो मूसा के जरिए शरीयत दी गई ये उसका जिक्र किया जा रहा है। और दान के बदले दान अगर दान आपने तोड़ दिया किसी का तो तू भी उसका क्या कर दे दान तोड़ दे।
لیکن میں تم سے کہتا ہوں شریر کا مقابلہ نہ کرنا، تاکہ جو کچھ تیرے دائیں گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو ٹوکرا بھی اسے لینے دے۔ جو کوئی تجھے ایک کوس بغار میں لے جانا چاہے 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے اور اسے منہ نہ موڑ۔ یہ مسیح کی تعلیم ہے۔ تم سن چکے ہو کہ عقلوں سے کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، اپنے دشمنوں سے کیا کہ پڑھتے ہیں یہ پیج پر پڑھا ہوا ہے، دشمنوں سے عداوت ہے، یعنی دشمنوں سے عداوت۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو، اپنے ستانے والوں کی دعا کرو۔ یہ سارا کلام آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ what is difference between grace and what is difference between law۔ اگلوں سے یہ کہا گیا، اگلوں سے یہ کہا گیا، اگلوں سے یہ کہا گیا تھا۔ تو ابھی ہمیں جو ہے اس طرح کی جو باتیں بہت ساری، یہ میرا مضمون نہیں ہے، میں اپنے کسی مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ پہاڑی باز ہے جہاں خدا یسوع مسیح نے کہا اگر تو قربان گاہ پر بھی آ گیا ہے یا آ گئی ہے، تجھے یاد آ جاتا ہے کہ غلام بھائی سے یا بہن سے میری ناراضگی ہے، تو کیا کر تو گئی، کیا کر بولے زور سے، نظر کو وہیں چھوڑ دے، جا کے پہلے اپنی بہن سے اپنے بھائی سے کیا کر معافی مانگ۔ قربانی قبول نہیں ہوگی، قربانی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تو معافی نہ۔ ہلیلویا۔ تو خدا ہم سے یہ توقع رکھتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گاسپل آف مارک چیپٹر 11 verse 24، مارک 11:24، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ وہ تم کو مل جائے گا۔ جب کبھی تم کھڑے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کوئی شکایت ہو، آپ کو خاص بات ہے، اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان کا ہے تمہاری گناہ معاف کرے۔ اور یہی دعائے ربانی میں نے کہا کہ ہم دہراتے ہیں مجھے الفاظ، تمہارا باپ جو آسمان کا ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔ اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔ ابھی تھوڑی دیر میں نے اس کلام کو جو کہ گاسپل آف میتھیو چیپٹر 18 میں ہے 10 کے حوالے سے بات کی، تو جن کو ہم معاف نہیں کیا وہ ہمارے اوپر کیا ہے، قرضہ ہے۔ تو سوچیں کہ کس بہن بھائی سے آپ کی ناراضگی ہے، تو وہ آپ کے اوپر کیا ڈیبٹ ہے، وہ آپ کے اوپر کیا قرضہ ہے۔ تو کیا آپ قرضے کو پر جا کے چڑھاتے جائیں گے یا فوراً ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی اپنی بات ہے، اور کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں اور آپ آج جو کلام کو سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم، خداوند یسوع مسیح معلم با عمل، کیا کہا میں نے، تو بولے گا زور سے، معلم با عمل، معلم با عمل، کیا مطلب اس کا؟ وہ ایک بولے بیٹا، بولے وہ ایک ایسے استاد تھے جو کچھ وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ معلم ہے استاد، معلم با عمل۔ آج کے استاد کو ہمارے ہیں، سمجھیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے روحانی پیشوا ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ ان کے قول اور فعل بھی کیا ہے، تضاد ہے۔ Am I right؟ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہو سکتا 100% نہ ہو لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہے۔ اور کلام بھی کہتا ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ تو سنو، جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ نہ کرو۔ یہ میں اس پوائنٹ کو جو میں کہہ رہا ہوں، اس پوائنٹ سے
تو وہ تو نہ کرو، اب وہ تو کرو، لیکن یہ دور کے کام ہے وہ نہ کرو۔ تعلیم کو اچھی دیتے ہیں نا، کبھی یہ نہیں بولیں گے کہ شراب پیو، وہ شراب پیتے ہیں، صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا میں، وہ شراب پیتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پڑپڑ سے نہیں کہیں گے کہ شراب نہ پیو، وہ بہت سارے غلط کام کریں گے، آپ سب کو پتا ہے، لیکن پڑپڑ سے نہیں کہیں گے تم سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں ویسا ہی کرو، صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ بات ہے، یہ نبی 23 باب کا حوالہ کا دیا ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ مانو، لیکن جو کرتے ہیں وہ نہ کرو۔ لیکن مسیح یسوع کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے ابھی کیا بتایا تھا ملزم باب میں، یسوع نے ابھی حوالہ میں نے پڑھا تھا گاسپل آف میتھیو چیپٹر 5 ورس 44 میں کیا کہا کہ اگلوں سے یہ کہا گیا تھا کہ دشمنوں سے کیا کرنا؟ عداوت رکھنا، ویر رکھنا، ان سے دور دور رہنا، لیکن میں تم سے کیا کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے کیا کرو؟ اور سے بولیے محبت کرو، دشمنوں سے کیا کرو؟ محبت کرو، اور ستانے والوں کی کیا کرو؟ کیا ہم کرتے ہیں ایسا؟ اگر ایسا کرتے تو ہے خدا ہم آپ لوگوں کو کرتے ہیں، لیکن دیکھنے میں بہت کم نظر آ جاتا ہے۔ آپ لوگ کیا تو رہے ہیں لیکن دیکھنے میں اپوزٹ ہے اس کے۔ کیا کوئی یاد آ رہا ہے کسی سے آپ کی ناراضگی ہے تو آج اس کو اس کلام کے مطابق کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ تو جو مسیح نے دنیا میں بشریت میں 3.5 سال یا 3 سال تک منادی کی، اس نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ کیا کہا تھا خدا یسوع مسیح نبی میں نے جو بتایا حوالہ مسیح کا کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرنا، ستانے والوں کے لیے دعا کرنا، تو مسیح نے صلیب پر اس کو پورا کیا۔ بتا سکتا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر، ہاں ہیلیلویا، اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خدا نے کن سے کہا تھا؟ یعنی کیا مسیح یسوع کو معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آدھی رات جا کے عید فصح منائی گی تو مسیح نے پرانا عہد نامے کو جو ہے خیر بات کیا اور نیا عہد جو لہو کا عہد ہے، گاسپل آف لوک چیپٹر 22 جو بھی عہد سے آن ورڈ پڑھ لیں تو پھر کہا یہ میرا خون نئے عہد کا نشان ہے، جب تک میں آ نہیں جاتا ایسے ہی کرتے رہنا۔ پرانی کی عادت ختم ہو رہی ہے اور نئی کی عادت کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ تو اب پہلی بات میں نے بتائی کہ اگلوں سے یہ کہا گیا تھا، مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ آئے بات ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ کیا مسیح کو پتہ نہیں کہ سبھی بار میں انہوں نے کو پکڑا ہے؟ کیا خدا یسوع مسیح جانتا نہیں کہ سردار قائم کیفا کے گھر میں عدالت پیش ہوئی؟ پھر جو ہے اس کے بعد کیفا کے گھر میں، اور اس کے بعد جو پلاطس کے ہیرودیس والی رات مسیح یسوع کو عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑے، جب یہ سارا کچھ یہ غیر قانونی ہے، گناہ ثابت بھی نہیں ہوا، یہ میں کلمہ نہیں بول رہا بھی، معافی کا کلام پیش کر رہا ہوں، سزا کب دی جاتی ہے؟ بولیے جرم ثابت ہو جائے۔ جرم ایک لفظ چیز ہے، کرائم ایک لفظ چیز ہے، اور دوسرا کیا لفظ ہے؟ اس جرم کو ثابت کرنا، پروو کرنا۔ سزا، مجرم، جرم اور مجرم میں فرق ہے۔ ملزم اور دوسرا لفظ کیا بولے کہیں گے؟ مجرم۔ تو جب تک ملزم جو ہے مجرم نہ ثابت کیا جائے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ آج عدالتوں میں کیس کیا جاتا ہے نا، وہ کیس لڑا جاتا ہے، اور جب جج کسی حد تک پہنچ جاتا ہے یا تو اسے بری کر دے گا یا اسے سزا کا حکم دے گا، لیکن مسیح کے لیے ایسا نہیں کیا۔ اس کو جو ہے کوئی بدلے جرم
साबित ही नहीं हुआ। सारा कुछ गैर कानूनी, अदालतें भी कभी रात को अदालतें खुली हैं, अदालतें भी रात को खुली रही। तो क्या किसी को पता नहीं है सब कुछ? क्या कह रहा हूँ, सब पता था, मेरे साथ रहिए। और जब उसकी दाढ़ी को नोचा गया तो क्या यीशु को पता नहीं था ना मेरी दाढ़ी को नोचा है? जब उसके मुंह पे थूका गया तो क्या यीशु को मालूम नहीं था कि इन लोगों ने मेरे मुंह पर थूका है? जब उसके तमाचे मारे गए तो क्या यीशु एक चंद घंटों में सब कुछ भूल गया था? तो जब उसे कोड़े मारे गए, कोड़े भी एक, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसकी डेफिनेशन बताऊं कि उस जो रोमी कोड़ा होता था वो किस किस्म का होता था। तो कोड़े मारे गए और उसका सारा बदन लहू लुहान किया गया। या ये सब काम भूल गया? फिर गुलगुता के मौका पर, जगह पर जब पहुंच गए, कोई सीना का ऐद अलग है और गुलगुता का ऐद अलग है। ये दो अलग अलग ऐद हैं। कभी मौका मिला तो मैं इसके बारे में आप लोगों से शेयर करूंगा। तो लिहाजा मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह क्या चंद घंटों में भूल गया? वहाँ गड़ा खोदा गया, उससे पहले मसीह यीशु के हाथों में क्या किया गए? बड़े बड़े 6-6 इंच के कील हाथों तक, यानी सलीब तक, लकड़ी तक चले ना गए, उस जिंदा गोश्त के अंदर कील गाड़े गए हाथों और पैरों में। और सर पर क्या रखा? कांटों का ताज किसको रिप्रेजेंट करता है? जल्दी से बोलिए जिसको मालूम है। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो गुनाह करने के बाद आदम को भी सजा सुनाई गई और औरत को भी सजा सुनाई गई कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से जमीन लानती हुई। यही लिखा ना बाइबल में, सही कह रहा हूँ? पास्टर साहब जानते यहाँ बैठे हुए हैं, भाई यहाँ पर बैठे, दूसरा बैठे हुए हैं। तो गुनाह, जमीन गुनाह की वजह से लानती हुई और जमीन ऊंट कटारे गाने लगी। ये हमारे गुनाह ही तो थे, ये हमारी सारी लानतें ही तो थी जो यीशु लेके सलीब पर चढ़ गया और हमारी अपनी मकरसी कराई। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। तो खुदावंद कहता है बाप इनको माफ कर। मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरे साथ रहें और कुछ सीखने की कोशिश करें। हम यहाँ से खाली हाथ में मिला के ना चले जाएं। आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते। ये सारी स्टोरी मैंने बताई तो क्या खुदा जानता नहीं था ये सब कुछ? बोलिए, जोर से बोलिए, बाद में जोर से बोलिए, जानता था। तो फिर खुदा ने क्यों कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि क्या करते हैं। यही भी कहना है आपकी बाइबल में, यीशु ने कहा आए बाप इनको माफ कर। बेटा मुतकल्लम है, मुतकल्लम का मतलब क्या है? तो कलाम करता है। और किससे कलाम कर रहा है? बाप से बात कर रहा है। और किन लिए कर रहा है? जिन्होंने उसे मसलूब करके मरवा डाला है। यीशु ने कहा आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि यीशु जो है मुआफी के बहाने ढूंढता है। ये मैंने सेम भी गाली थी, अभी मैंने आधा जुमला अदा किया। क्या मैंने कहा? जिसको याद है? यीशु मुआफ करने के बहाने ढूंढता है और हम जो है मुआफ ना करने के बहाने ढूंढते हैं। हम मुआफ ना करने के बहाने ढूंढते हैं। तो तेरा गुनाह देखा करके में तुम निकलना हुआ है, तेरी ऐसी की तैसी है। जब तक हम एक 10 बना नहीं लेते, कहीं ठंड नहीं पैती हैं, ऐसे है ना। और खुदा ये चाहता है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो खुदा की तालीम अगर आप यीशु
के फॉलोअर हैं। तो खुदावन खुदा ने आज मुझे और आपको माफ़ी का कलाम दिया है। हम किसके फॉलोअर हैं? बोलिए जोर से। यीशु के, जीसस के। बहुत सारे मिशनरी जीसस को नहीं मानते, वो जीसस के लफ्ज़ को नहीं मानते। अब ये मेरा मजमून नहीं है, लेकिन मफहूम वही निकलता। कभी मौका मिला, पहले भी मैंने फेसबुक पे ये मैसेज दे चुका हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि जो यीशु कहता है हम वो मानते हैं, जीसस क्राइस्ट। जीसस का मतलब क्या है? यीशु का मतलब क्या? छिड़ाने वाला। किससे छिड़ाने वाला? रिलीज करने वाला, गुनाहों से आजाद करने वाला। क्राइस्ट का मतलब क्या है? अनॉइंटेड वन। और जो हमारे दूसरे भाई मसीहानिक जूस कहते हैं वो भी मसाया कहते हैं। तो क्राइस्ट का मतलब ही मसाया है। तो बात एक ही है, कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। तो लिहाजा ये जो बिदअत है ये 18वीं सदी के दरमियान या 19वीं सदी या 20वीं सदी के मेरा ख्याल दरमियान का कोई मसीहानिक, इनके अपने लोग जो हैं इन्होंने इनको मसीहानिक को लग कर दिया। कितने यहूदी है जिनको नहीं मानते, आज तक भी नहीं मानते, उनकी तालीम को नहीं मानते यहूदी आज भी। वो अभी तक भी इस बात पे डटे हुए हैं कि मसाया आने वाला है। ये मसीह का इकरार तो करते हैं, मसाया का इकरार तो करते हैं, लेकिन मसाया की तालीम का नहीं करते। और इस 24 तारीख को जिन लोगों के साथ मेरी डिबेट है, आप सब मेरे लिए दुआ भी करें, ताकि जिन लोगों के साथ मैं बैठ कर बात करता हूँ तो खुदावंद मुझे हिकमत और गनाई दे। और इससे पहले एक मैं डिबेट कर चुका हूँ और उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई मेरा सारा मौक़िफ़ सुन लिया, सुनने के बाद कहा कि आप जो है वीडियो को ना चलाएं। तो लिहाजा कितनी बिदअतें हैं, 3000 बिदअतें दुनिया में काम करी। बिदअत क्या है? इस कलाम से निकलती है, यानी इसी कलाम से कोई बात निकाल के जो है अपनी नई तालीम बना लेना, जो असली तालीम से जब मुख्तलिफ हो। तो खुदावंद खुदा चाहता है कि आज मेरा ये मज़मून नहीं है। आज मेरा मज़मून क्या है? पावर इन फॉरगिवनेस। जब हम माफ़ करते हैं किसी को तो खुदा हमें क्या करता है? माफ़ करता है। हमारे सारे कर्जे को माफ़ कर देता है। हमारी जो तरक्की रुकी हुई है वो शुरू हो जाती है। जब हम माफ़ करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी शुरू हो जाती है, हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाते हैं, हालेलुया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं जब हम माफ़ करते हैं। तो ये सारी उसकी बरकत हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और थोड़ी देर के लिए आप सोचें, अगर आपके साथ किसी से नाराजगी है तो आप उसको मुआफ कर दें। अब आपकी बारी है, मेरी बारी खत्म हो गई है और दूसरे हिस्से में मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। अगर मैंने किसी को, मेरी नाराजगी है तो मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ जो कलाम कहता है। अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया तो आज के कलाम के मुताबिक आप उसको माफ़ करें। ये किसकी तालीम है? यीशु की तालीम है, ये ब्रदर जावेद की तालीम नहीं है। आए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। उसने जाते वक्त भी माफ़ी का पैगाम दिया और अपनी खिदमत का आगाज़ भी माफ़ी ही से किया। कितनी बड़ी बात है, इस पर गौर कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज़ मेरे कानों तक आए। बरकत मांगे अपने लिए। जब आप बरकत मांगते हैं, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं, तो बरकत आपके मुंह से निकलती है। ब्लेसिंग आपके मुंह से निकलती है। पहले बरकत आपको मिलेगी, फिर आपके दुश्मन को मिलेगी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद का गहरा मौसम मेरी बहन, मेरे भाई, आज सब अच्छा रहा। हालेलुया, अपने दो
लाइफ पाक रूह को अपने जीवन में काम करने की इजाजत दे। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो भरे की। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावन, जिन लोगों ने एक दूसरे को माफी दी है तो अब उसके बाद सेकंड स्टेप है कि वो एक दूसरों को अपने गले लगाएं और इसी से रिवाइवल शुरू हो जाती है। अगर आप बेदारी चाहते हैं, ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस, जब आप माफ करते हैं तो आपके अंदर बेदारी का आगाज होता है। जब आप माफ करते हैं तो आपके गुनाह, आपका कर्जा अदा किया जाता है। जब आप माफ करते हैं तो आपको तमाम फाइनेंशियल इश्यूज पर खुदा बरकत देता, प्रॉस्पेरिटी आपके खानदान में आ जाती है। जब आप माफ करते हैं तो हीलिंग का काम आपके जीवन में शुरू हो जाता है। ये सारी बरकत मैंने बताई माफ करने में है। हालेलुया। अब आप दुआ करें अपने लिए, आप बीमारों के लिए दुआ करूंगा जहां आपकी तकलीफ है उस जगह पे हाथ रखें। अब मोज़ात का वक़्त है। अगर आपका कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ करें। आए खुदा तमाम बीमारों के लिए दुआ करता हूँ यीशु नाम से। आए तमाम लानती बीमारियों, मैं तुम्हें यीशु नाम से हुक्म देता हूँ, इन बदनों को छोड़ो। जितने यहाँ मौजूद हैं और जो फेसबुक पर कलाम को सुन रहे हैं, उन्होंने अपने बदन पे हाथ रखा हुआ है। Whatever problem they are suffering from, dear Jesus, spread out your mighty healing hand upon them. Dear Jesus, spread out your mighty healing hand upon them and heal them instantly. अब इसी वक्त शफा दे। अंधी आंखें, अंधे देख सकते हैं, प्यारे सुन सकते हैं, गूंगे बोल सकते हैं, कॉलेज के मरीज चल सकते हैं और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के मरीज शिफा पा सकते हैं। बांझपन जा खत्म हो सकता है और ये आप उससे शिफा पा चुके हैं। हालेलुया। आपके सारी एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम यीशु नाम से खत्म हो चुकी है। अनवांटेड ग्लैंड, सिस्टोन शुड डिसअपीयर इन माइटी नेम ऑफ जीसस। Unwanted gland stone should disappear in mighty name of Jesus. Spinal problem should go in mighty name of Jesus. आयतन जो है वर्टिब्रे जो अपनी जगह पर नहीं है, उनको मैं हुक्म देता हूँ अपनी जगह पे आ जाए। अभी और इसी वक्त जो गैप है वर्टिब्रेस में, वो अपनी जगह पे आ जाएं। स्पाइनल प्रॉब्लम जाती रहे, बेरोजगारी रोजगार में बदल जाए, बेरोजगारी रोजगार में बदल जाए। जिनका बिजनेस खुदा बंद है, उनके बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी मांगता हूँ। हालेलुया। हाजिर जमात के लिए बरकत मांगता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो कि तूने हमारी दुआओं को सुना और कबूल किया। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू। आप में से कितने बहन भाई हैं जो ये महसूस करते हैं कि वाकई खुदावंद यहाँ मौजूद है और आपने बरकत पाई, ब्लेसिंग पाई? क्या ना चीज और है जोरदार तालियां बजा के आपने देखा कि आपके सामने केक रखा हुआ है, अभी आपने सेलिब्रेशन की। इसके साथ भाई सैमुअल भी आपने उनकी बहू के बेबी हुआ है और माँ बेटा दोनों ठीक हैं। भाई मैनुअल इंग्लैंड से आए, वो भी स्वीट लेकर आए हैं और आज बहुत कुछ हमारे पास है, इसलिए हम खुदा का शुक्र है। जितना आप खा सकते हैं आप खाएं और मैं चाहता हूँ कि आप बैठ जाएं। पहले बहनें मसा के लिए आगे आएंगी, उसके बाद भाई आगे आएंगे और आप अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा के सामने पेश कर सकते हैं। हालेलुया।
चर्च के अंदर टिश्यू नहीं गिराए।